Hello everyone. This video is the third part of William Shakespeare works. In this video we will discuss the summary of Julius Caesar, Caesar, Hamlet, Twelfth Night, Troilus and Cressida, All Well That Ends Well. इन पांचों की समरी के बारे में आज हम पढ़ेंगे with the help of character map. So this is the character map of Julius Caesar. इसमें जूलियस कैसियर वाज द लीडर ऑफ रोम, ब्रूटस वाज अ सीनेटर, इज़ अ सीनेटर एंड कॉन्स्पिरेटर, कासा इज़ आल्सो अ कॉन्स्पिरेटर, कैसियस आल्सो अ कॉन्स्पिरेटर, मार्क एंटोनी इज सपोर्टर ऑफ जूलियस कैसियर, ऑक्टेवियस फादर एंड अडोप्टेड सॉन्ग, जूलियस सीजर्स अडोप्टेड सॉन्ग ऑक्टेवियस, एंड कैलफ्यूरनिया इज द वाइफ ऑफ जूलियस Caesar. So the story starts with the tribunes of Rome, Marcellus and Fabius break up a gathering of citizens who want to celebrate Julius Caesar return from war. Julius returned from war after the victory of war, मतलब लड़ाई के बाद वो वापस आता है. And the victory is marked by public game in which Caesar's portrait Mark Antony take part. और वहाँ पर एक गैदरिंग होती है, लोग सेलिब्रेट करते हैं, एंटोनी भी उसका एक हिस्सा होता है. On his way to the area, Caesar is stopped by a stranger who warn him that he should beware the Ides of March. एक जो है वो मिलता है उन्हें, एक आदमी मिलता है और वह कहता है कि तुम्हें मई 15 मार्च वाले दिन से तुम्हें सावधान रहना, ठीक है, वो तुम्हारे लिए सही नहीं. Then the fellow senators Casa, Cassius, Marcus Brutus are suspensions of Cassius' reaction to the power he hold in the republic. Casa, Cassius and Brutus are afraid that Julius will be the king of the Rome. So they all of them planned for the assassination of the Julius Caesar. So they fear he will accept offers to become emperor. He has been gaining a lot of power recently and people treat him like a god. So Cassius, a successful general himself, is jealous of Caesar. Julius. Brutus has a more balanced view of the political position. The conspirator Casa enters and tells Brutus of a ceremonial held by the plebeians. They offered Caesar a crown 3 times and he refused it every time, but the conspirators are still wary of his aspiration. यानी कि एक सेलिब्रेशन होता है जहाँ पर उसे 3 बार कैसियर को, जूलियस को जो है वो क्राउन दिया जाता है कि वो एम्परर बने रोम का, लेकिन वह मना कर देता है. लेकिन फिर भी ब्रूटस, कैसियस और कासा को डर लगा रहता है कि कहीं ये एम्परर ना बन जाए. अब कैसियस, कासा एंड देयर अलायंस plant false documents to manipulate Brutus to join their cause to remove Caesar. After doing so, they visit Brutus at night in the home to persuade him of their views. There, they plan Julius' death. Brutus is troubled but refuses to confide in his devoted wife Portia. On 5th March, Cassius' wife Calpurnia urged him not to go to the Senate. She has had visionary dreams and fear the portent of the overnight storm. यानी कि ब्रूटस, ये दोनों, ब्रूटस जो है वो काफ़ी सही होता है, मतलब सही सीनेटर होता है, तो ये दोनों मिलके जो है वो ब्रूटस को मनाते हैं इसके एसिनेशन के लिए. तो रात के समय में जूलियस को बुलाया जाता है दरबार में, लेकिन कैलिफोर्निया उसे मना कर देती है कि तुम मत जाओ क्योंकि मुझे एक डरावना सपना आया है. देन कैसियर इज़ nevertheless persuaded by flattery to go to the capital. At the capital, he is stabbed by each conspirator in turn. As Brutus gives the final blow, Caesar utters the famous phrase "Ad to Brute", यानी कि तीनों मिलकर उसे मार देते हैं जब वह दरबार में जाता है. Then against Cassius' advice, Brutus allows Mark Antony to speak a funeral oration for Caesar in the market palace. He is allowed under the condition that first Brutus must address the people to explain the conspirators' reason and their fears for Caesar's ambition. After Brutus' speech, the crowd became calm and supported his cause. However, Antony in his speech questioned the motives of the conspirator and reminds
the crowd of Cassius' benevolent action and of his refusal to accept the crown. He also read Cassius' will, in which Caesar leaves public land and money to each Roman citizen. Antony's speech stirred the crowd into a murderous rout, and the conspirators are forced to flee from the city. जूलियस के मरने के बाद एक फ्यूनल होता है जहाँ पर एंटोनी को पता होता है, शक होता है कि इन तीनों ने मिलकर ही जो है वो जूलियस को मारा है। तो एंटोनी सबसे पहले ब्रूटस को बोलता है कि वह फ्यूनल पर कुछ बोले। तो ब्रूटस जो है वो कॉन्स्पिरेटर्स को लेके बोलता है, एक वैलिड रीज़न देता है कि जूलियस का मर्डर क्यों किया गया, तो पब्लिक शांत हो जाती है। लेकिन मार्क एंटोनी फिर क्या करता है, एक ऐसी स्पीच देता है जिससे पब्लिक बहुत ज़्यादा जो है वो क्या हो जाती है, गुस्से में हो जाती है, जिसके कारण इन तीनों को मिलकर क्या करना पड़ता है, वहाँ से भाग जाना पड़ता है। अब ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं और अपनी एक आर्मी बनाते हैं एंटोनी से लड़ने के लिए। तो क्या होता है कि कासा और कैशियस ये दोनों ही जो है वो लड़ने लग जाते हैं आपस में, क्योंकि जो सोल्जर्स हैं उनको पैसे देने के मामला होता है, तो दोनों लड़ने लग जाते हैं कि पैसा कौन देगा। और एट द एंड ऑफ द नॉवल जो ब्रूटस है, जब ये तीनों वहाँ से भाग जाते हैं सिटी से, then Brutus and Cassius gather an army in the northern Greece and prepare to fight the force led by Mark Antony. वे अपनी आर्मी डेवलप करते हैं। एंटोनी हैज़ ज्वाइंड विद कैशियस ग्रेट नेफ्यू ऑक्टिवस। एंटोनी ऑक्टिवस के साथ मिलकर जो है वो लड़ाई के लिए अपनी सोच तैयार करता है। अवे फ्रॉम रोम, ब्रूटस एंड कैशियस आर फिल्ड विद डाउट अबाउट द फ्यूचर एंड क्वारल ओवर फंड्स फॉर देयर सोल्जर्स पे। ये दोनों लड़ने लग जाते हैं सोल्जर्स के पे को लेके। After making amends, they prepare to engage Antonio's army at Philippa. Despite Cassius' misgiving about the site, Brutus stokely received news of his wife's suicide in Rome. तब ब्रूटस को न्यूज़ मिलती है कि उसकी वाइफ ने सुसाइड कर लिया। ठीक है। He then sees Cassius Julius host as he tries to rest and is unable to sleep on the eve of the conflict. और ब्रूटस को जूलियस का एक होस्ट भी दिखाई देता है। अब बैटल में क्या होता है, बैटल में सबसे पहले जो है, जो ब्रूटस के द्वारा जो आर्मी है वो सबसे पहले जीतती हुई दिखती है। लेकिन जब कैशियस का मैनेजर आता है तो कैशियस डर जाता है उससे, ठीक है, और वह क्या करता है कि आपस उस सर्वेंट को मार देता है और एक्चुअल में वो कासा होता है। ठीक है, इस तरीके से फिर आफ्टर फाइंडिंग कैशियस बॉडी को जब कैशियस की बॉडी को पाकर ब्रूटस भी सुसाइड कर लेता है और उसे ये लगता है कि मतलब युद्ध में लड़ने से अच्छा है कि मैं ऐसे ही मर जाऊं। तो फिर एंटोनी जो है वो ब्रूटस को काफ़ी सही समझता है और उसके लिए प्रॉपर फ्यूनल करता है। सो दिस इज द शॉर्ट स्टोरी ऑफ द जूलियस कैसियर। देन द समरी ऑफ हैमलेट। हैमलेट के समरी ये है कि हैमलेट के फादर का मर्डर कर दिया जाता है क्लॉडियस द्वारा, और क्लॉडियस जो है वो हैमलेट की मदर से शादी कर लेता है। उसके बाद हैमलेट की मदर से शादी होर्शिया से शादी कर लेता है। अब होर्शिया जो है, ये जो होर्शिया है उसे हैमलेट के फादर जो है, हैमलेट का जो फादर है उसका होस्ट, उसका भूत उसे दिखाई देता है और वह जो वो क्या करता है, हैमलेट को उसके बारे में बता देता है। ए नाइट किंग्स होस्ट अपीयर टू हैमलेट एंड टेल्स हिम दैट कोर्चियस मर्डर हिम। अब उसके फादर का जो होस्ट है वह हैमलेट से कहता है कि मुझे मेरे ये भाई ने मारा है। सो हैमलेट प्रिटेंड टू बी मैड, so Claudius and gratitude gives to Polonius the task of discovering the cause of his madness. अब वह एक्टिंग करने लगता है हैमलेट कि वो पागल हो गया है, ताकि क्लोडियस और इसकी जो वाइफ है यानी हैमलेट की मदर है, हैमलेट की मदर का नाम है ग्रेट्यूड, वह क्या करते हैं, पोलोनियस को काम दे देते हैं कि वह पता लगाए कि हैमलेट पागल क्यों हुआ है। तो ये कहता है कि हैमलेट इसलिए पागल हुआ है क्योंकि वो ओफिला से प्यार करता है। ठीक है, हैमलेट ट्राइज टू स्टेज अ प्ले टू रीएनेक्ट हिज फादर मर्डर। उसके बाद हैमलेट एक प्ले परफॉर्म करता है अपने स्टेज पे कि जिस तरीके से उसके फादर की डेथ हुई थी। देन हैमलेट टेल्स ग्रेट्यूड अबाउट द डेथ ऑफ हिज फादर, और हैमलेट अपनी माँ से भी अपने फादर की डेथ के बारे में कहता है। हैमलेट बिलीविंग टू किल क्लॉडियस मर्डर्स बट किल पोलोनियस। हैमलेट सोचता है कि उसने क्लॉडियस को मारा है लेकिन वह गलती से पोलोनियस को मार देता है, ओल्फिया के फादर को। जब ओल्फिया को पता चलता है कि उसके फादर मर गया है तो वह भी सुसाइड कर लेती है। उसके बाद जो है वो ओल्फिया का ब्रदर आता है, लैरेटरस आता है, और वह जो है वो क्या करता है, इन दोनों के बीच में लड़ाई होती है कि तुमने मेरे फादर को मारा। अब इन दोनों के बीच में जो है लड़ाई होती है।
जब ये दोनों लड़ाई कर रही होती हैं, देन लेट्रियस पियर्स हैमलेट विद द पॉइजन ब्लेड बट इज वाउंडेड बाय इटसेल्फ। ठीक है, इसमें जो है वो खुद ही अपनी एक पॉइजनस जो तलवार होती है इससे वह खुद मर जाता है, और जो हैमलेट की मदर होती है ग्रेट्यूड वह भी क्या करती हैं, पॉइजनड वाइन पीती हैं और वो मर जाती हैं। हैमलेट मैनेज टू के क्लोडियस एंड नेम 4 टिम्बर्स एज हर हायर। अब हैमलेट क्या करता है, वो इसको भी मार देता है और खुद राजा नहीं बनता, वह किसी और को राजा बना देता है। नाउ द समरी ऑफ ट्वेल्थ नाइट की समरी ये है। ओर्सिनो ड्यूक ऑफ लाइरिया होता है, वह प्यार करता है ओलिविया से, लेकिन ओलिविया हमेशा इसको रिजेक्ट कर देती है। अब क्या होता है कि वह बार बार लेटर भेजता है उसको, लेकिन वो हमेशा रिजेक्ट इसको कर देती है। वोलिया और सेबेस्टियन ये दोनों ट्विन्स, मतलब ये जो है वो बहन है और ये भाई है, दोनों की शक्ल सेम है। एक बार वो शिप में जा रहे होते हैं और शिप जो है वो डूब जाती है और ये दोनों अलग हो जाती हैं। इसको लगता है कि उसका भाई मर गया, उसको लगता है उसकी बहन मर गई है। अब वोलिया क्या करती है, वोलिया को जो ये राज्य होता है ओरसिनो का राज्य होता है, उसके जो मछुआरे होते हैं वे उसे बचा ले आती हैं। वे क्या करती है, वह जो है वो एक आदमी का रूप धारण कर लेती है जिसका नाम होता है किसारियो। ठीक है, किसारियो का वो कर लेती है। अब क्या करती है, ओर्सियो जब ये देखता है किसारियो को तो वह क्या करता है, किसारियो को ओलिविया के पास भेजता है कि तुम जो है वो इसके पास जाओ कि ये शादी के लिए मान जाए। जब ओलिविया इसको देखती है, बोलिनिया को भी देखती है कि जो कि एक किसारियो बना हुआ होता है, तो वह इससे प्यार करना शुरू कर देती है और मना कर देती है कि वह ओर्सियो से शादी नहीं करेगी। ठीक है, ऐसी स्टोरी आगे चल रही होती है। उसके बाद ओलिविया अपने स्टुअर्ट को भेजती है, मालवियोलो को भेजती है एक रिंग के साथ, ओर्सिनो के पास भेजती है एक रिंग के साथ। अब क्या होता है कि ओलिविया के घर में सर टोबी, मारिया, सर एंड्रू ये क्या करते हैं, ये मालवियो को पागल बनाते हैं और ये कहते हैं कि ओलिविया तुमसे प्यार करती है, लेकिन तुमको एक प्रॉपर एक ड्रेस बताते हैं कि तुम्हें इस ड्रेस में आना होगा तो ओलिविया तुमसे शादी कर लेगी। अब वोलियो उस ड्रेस में आता है तो ओलिविया उसे पागल कहकर एक बंद दरवाजे में बंद करवा देती है। उसके बाद जो सर एंड्रू होता है वह भी जो है वो प्यार करता है ओलिविया से, लेकिन सब एंड्रू को जब पता चलता है कि ओलिविया जो है वो किसारियो से प्यार किसारियो के प्रति उसका अफेक्शन है, तो वह बहुत ज़्यादा उससे ज्वेलस होता है और वह कहता है कि मुझे कैसेरियो को चैलेंज करता है कि तुम मेरे साथ डुएल करो, लड़ाई करो। ठीक है, अब ये जो सर टॉमी ने प्रैंक करा था, तो बोथ एंड्रू एंड किसारियो बिलीव दैट देयर अपोनेंट इंटेंड टू फाइट टू डेथ। They both shirk the fight. However, the sea captain Antonio passes and by mistake Kisario for Sebastian and intervene to defend his friend. अब ये जो सेबेस्टियन है वो बच जाता है, ये भी बच जाता है और वह उसी राज्य में आता है जहाँ पर वियोला होती है। इसको एंटोनियो लेकर आता है। ठीक है, जब वहाँ पर ड्यूल हो रहा होता है तो विलियो की जगह सेबेस्टियन जो है वो लड़ाई करता है और सर एंड्रू को वो हरा देता है। फिर ओलिविया जब ये लड़ाई देखती है तो वह सोचती है कि यह कैसेरियो है, लेकिन एक्चुअल में वो सेबेस्टियन होता है। तो वह कैसेरियो को अपने जो कि सेबेस्टियन एक्चुअल में सेबेस्टियन होता है उसे अपने घर में बुलाती हैं और फिर सेबेस्टियन और ओलिविया शादी कर लेते हैं। ओलिविया को लगता है कि वो किसारियो है, लेकिन एक्चुअल में वो कौन होता है, सेबेस्टियन होता है। उसके बाद सेबेस्टियन को जो बचा के लाता है एंटोनियो, वह एंटोनियो ओर्सियो से बात करने के लिए आता है, लेकिन जब वह इसके राज्य में आता है तो वह वियोला को देखता है और वह कहता है कि ये सेबेस्टियन जिसको मैं बचा के लाया था, दोनों की शक्ल सेम है। तो वो इसको एक्यूज़ करता है कि तुमने मुझे धोखा दिया है, और उसके पास सेबेस्टियन भी वहाँ पर मौजूद हो जाता है, वहाँ पे आ जाता है। उन्हें पता चलता है कि ये दोनों भाई बहन हैं और दोनों की शक्ल सेम मिलती है। अब सेबेस्टियन ओलिविया की शादी हो चुकी है तो वोलिया जो है वो शादी ओर्सिनो से कर लेती है। देन द नेक्स्ट नॉवल इज़ ट्योरस एंड किसेड्रा। इसमें दो राज्य हैं, ग्रीक और ट्रोरी। ग्रीक के अंदर किंग एगामियन होता है, आगे भी इसका नाम है किंग एगा होता है। इसके दो काउंसलर होते हैं, यूसिलस एंड नेस्टर। एक सोल्जर होता है एचलिस, ब्रदर होता है मिनिलियस, और एचलिस का एक फ्रेंड होता है पेट्रोक्लस। ठीक है, अब क्या होता है कि सब के सब एचलियस से बोलते हैं कि तुम जो है वो ट्रोरी के खिलाफ लड़ाई करो, लेकिन वो हमेशा इसको मना करता रहता है कि मैं लड़ाई नहीं करूँगा। ठीक है, अब टोरी में क्या होता है, टोरी में राजा प्रियम होता है, उसके 3 बेटे होते हैं, हेक्टर, पेरिस, च्योरस, और बेटी होती है कैसेंड्रा। ठीक है, च्योरस प्यार करता है क्रिसिडा से, क्रिडिसा का अंकल होता है पेंड्रस, और
क्रिसिडा का फादर होता है कैल्चस। अब जो ये होते हैं पेरिस, जो बेटा होता है पेरिस ने हिलन को वह चोरी करके ले आता है। हिलन कौन होती है? हिलन वाइफ होती है मिनीलॉयस की वाइफ होती है, उसे वह चोरी करके लेके आ जाता है। तो यहाँ पर शर्त लगी होती है ये कि तुम जो है वो एक डुएल करो, यानी कि एक लड़ाई करो। लड़ाई के लिए कोई बंदा उन्हें भेजना होता है, लेकिन उससे पहले वो कहते हैं कि हम ये ग्रीक कहते हैं कि हम ट्रोजन के लोग सोल्जर्स को या प्रिजनर्स को तभी छोड़ेंगे जब तुम वहाँ से कोई एक बंदा भेजेंगे। तो क्रिसेंट्रा को यहाँ पर भेज दिया जाता है। वो बहुत मना करती है, लेकिन उसके बाद भी क्रिसिडा को यहाँ पर भेज दिया जाता है और यहाँ पर आकर वो डियोमेटस से फ्रेंडशिप कर लेती है। अब ग्रीक लोग अब जो है वो ये लोग कहते हैं, ट्रोरी वाले लोग कहते हैं कि हमें लड़ाई करनी है, तुम जो है वो ड्यूल करना चाहते हैं एक एक इंसान के बीच में। तो ग्रीक वाले एचएस को भेजना चाहते थे, ठीक है। एचएस को भेजने के बजाय वो एचएस को जब वो भेजने के बजाय वो पेट्रोलस को भेजते हैं और पेट्रोलस जो है वो मर जाता है। तो एचएलएस मोटिवेट हो जाता है कि उसका फ्रेंड मर गया तो उसे भी लड़ाई में हिस्सा लेना है। उसके बाद ट्रोलियस जब इस क्रिसेडा को ढूंढने के लिए ग्रीक में जाता है, तो जब वह देखता है कि वह डियोमेटस से फ्रेंडशिप कर रही है तो उसे लगता है कि उसने उसको क्या किया है, डिसीव किया, उसे धोखा दिया है, ठीक है। उसके बाद ट्रोलस उसको ढूंढने के लिए ग्रीक जाता है। जब उसे पता चलता है कि वह डियोमेटस से उसने फ्रेंडशिप कर ली तो वापस अपने राज्य में आ जाता है, तो और कहता है कि मुझे भी लड़ाई करनी है क्योंकि क्रिसिडा ने उसको धोखा दिया है। फाइनल बैटल होता है। फाइनल बैटल में जो हेक्टर होता है वो पेट्रोलस को मार देता है। एचेलस मोटिवेट हो जाता है लड़ाई करने के लिए और वाइल ओरिजिनली ओवरकम बाय हेक्टर, एचेलस सक्सीड इन ट्रैपिंग हिम। हेक्टर अनार्म्ड इस लेटर बाय एचेलस ट्रॉप ऑफ सोल्जर, और हेक्टर भी जो है वो एशियस के सोल्जर से मारा जाता है। और ट्रोलस स्वीर रिवेंज फॉर हिज ब्रदर। ट्रियोलस जो है वो शपथ लेता है कि उसके ब्रदर की डेथ का वह बदला लेगा, एंड आल्सो फॉर द लॉस ऑफ क्रिसेड्रा एंड हिज यूथफुल इनोसेंस। तो उसके बाद जो पेंड्रस होता है जो कि क्रिसेड्रा के अंकल होते हैं, वह प्ले को एंड करते हैं। ही सी नो होप फॉर अ वर्ल्ड वेयर पॉलिटिक्स ओवररूल द डिज़ायर एंड नीड्स फॉर द इंडिविजुअल। पेंडोरस को क्या करते हैं, इस लड़ाई को एंड करते हैं। जो एक और इस वीडियो का जो लास्ट प्ले है विलियम शेक्सपियर का, वो है द ऑल वेल दैट एंड्स वेल। इसके अंतर्गत काउंटेस होती है, उसका बेटा होता है बैट्रम, ठीक है। जब उसके फादर मर जाते हैं तो वह किंग ऑफ फ्रांस के पास रहने के लिए जाता है अपने फ्रेंड पारोलस और लॉर्ड लाफ्यू के साथ। काउंटेस जो कि एक वो होती है मेड कह सकते हैं हम, या उसकी देखभाल करने वाली होती है हेलेना प्यार करती है बैट्रम से, लेकिन बैट्रम उससे प्यार नहीं करता। काउंटेस हेलेना को बोलती है कि तुम किंग ऑफ फ्रांस के पास जाओ क्योंकि वो बहुत बीमार रहता है और यह जो है वो इसके फादर फिजिशियन है, तो इसलिए वह काउंटेस हेलेना को बोलती है कि तुम किंग ऑफ फ्रांस के पास जाओ और उसको क्योर करो। तो वह भी यहाँ पर जाकर इसको सही कर देती है। तो किंग ऑफ फ्रांस कहता है कि तुम मांगो, तुम क्या चाहती हो। तो हेलेना जो है वो कहती है मुझे बैट्रम से शादी करनी है, लेकिन बैट्रम कहता है कि तुम्हारी सोशल रैंक कम है तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, लेकिन वह कंडीशन रखता है कि अगर तुम मेरे बच्चे की माँ बनी और तुम्हारे हाथ में मेरी अंगूठी हुई तो मैं तुमसे शादी कर लूँगा। अब किंग ऑफ फ्रांस क्या करता है, कहता है कि ठीक है तुम्हारी शादी बैट्रम से नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें एक रिंग देता हूँ, तो वह उससे एक रिंग दे देता है। अब हेलेना जो है वो कहीं और चली जाती है। अब बैट्रम जो है वो लड़ाई के लिए फ्लोरेंस जाता है। फ्लोरेंस में जाने पर उसे डियाना मिलती है। डियाना एक विडो की डॉटर है और वह उससे मतलब उसको प्रति उसका अफेक्शन हो जाता है। हेलेना भी डियाना से मिलती है। जब उसे पता चलता है कि बैट्रम का अफेक्शन डियाना के पास है तो हेलेना डियाना से अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है और डियाना उसका सपोर्ट करने के लिए तैयार हो जाती है और वह बैट्रम से कहती है कि तुम मुझे आधी रात को एक बंद कमरे में मुझसे मिलना, ठीक है। तो जब वह मिलती है तो डियाना की जगह हेलेना वहाँ चली जाती है। दोनों के बीच में फिजिकल रिलेशन होता है और फिर बैट्रम अपनी अंगूठी हेलेना जो है अपनी अंगूठी बैट्रम को दे देती है। उसके बाद अगले दिन बैट्रम किंग ऑफ फ्रांस कहता है कि बैट्रम की शादी लॉर्ड लॉफल्स की बेटी से होगी। बैट्रम इसके लिए तैयार हो जाता है। तभी हेलेना वहाँ पर आती है और हेलेना के हाथ में वह अंगूठी बैट्रम के हाथ में वो अंगूठी देख के जो कि हेलेना ने दी थी, और हेलेना को किसने दी थी, किंग ऑफ फ्रांस ने दी थी। तो बैट्रम कहता है कि तुम्हारे पास ये अंगूठी कहाँ से आई। तो फिर डायना आती है और ये कहती है कि इसने जो है वो मुझे सिड्यूस किया है। तो लॉर्ड लॉफल अपनी बेटी की शादी करने से उसे मना कर देता है। उसके बाद एंड में हेलेना आती है और ये सारे
सारी चीज़ें बताती हैं कि सिचुएशन क्या क्या थी, और एट द एंड उसे बताती है कि किस तरीके से उसने अंगूठी उससे ली है और वह उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली है। तो बैटरम उसकी कंडीशन पूरी उसने कर दी हेलेना से, तो उसे शादी के लिए तैयार हो जाता है। सो दिस इज़ द summary of the play of William Shakespeare. In my next video, I will discuss some more works of William Shakespeare.